Good morning, students. Chapter 5 legislature is going on. Today we will discuss about the instrument of parliamentary control. In last video we discussed this how the parliament control the executive, and today instruments or mechanism through which parliament control the executives. The legislature in parliamentary system ensure executive accountability at various stages. There are three stages mainly. At these three stages, legislature ensure that executive must be accountable in the parliamentary form of government. These three stages are: first is policy making, second one is implementation of law or policy, third is during and post implementation stage. सबसे पहले जब कोई लॉ या पॉलिसी बनाई जाती है, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करते समय, ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद की स्टेज पर भी ये लेजिस्लेशन इंश्योर करती है कि एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल रहे, बिकॉज दिस इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, एंड इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर इंश्योर दैट एग्जीक्यूटिव should not use the power in arbitrary manner. The legislature does this through the use of a variety of devices. हमने अभी कहा लेजिस्लेचर ये इंश्योर करती है कि एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल रहें. Then what are the mechanism? What are the instruments through which legislature ensure that? So there are four instrument. यहाँ four instruments है हमारे. First is deliberation and discussion. Second is approval or refusal of law. Third is financial control and no confidence motion. I am again repeating. There are the four instruments. First, deliberation and discussion, approval or refusal of law, financial control and no confidence motion. In today video we will discuss about only deliberation and discussion, and in next second video we will cover all these remaining three instruments. So today we are discussing about the topic A. That is instrument of parliamentary control. That is deliberation and discussion. Now students, deliberation and discussion during the law making process. जब भी देश में कोई लॉ बनाया जाता है, members of the legislature get an opportunity to deliberate on the policy direction of the executive. चाहे वो नेशनल लेवल की हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, या स्टेट लेवल ऑफ विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, कोई भी लॉ बनाते समय जितने भी एमपी या एमएलए होते हैं लेजिस्लेचर के अंदर, सभी को मौका मिलता है अपने व्यूज रखने का, उन्हें डिस्कस करने का कि उस पॉलिसी के रिगार्डिंग वो क्या सोचते हैं, किस तरह से पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी चाहिए. हर मेंबर को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलता है पार्लियामेंट के सेशन के द्वारा, या विधानसभा का सेशन जब चल रहा होता है. अपार्ट फ्रॉम डेलिब्रेशन ऑन बिल्स पर डेलिब्रेशन के अलावा भी कंट्रोल में भी ऑल्सो एक्सरसाइज ड्यूरिंग द जनरल डिसीजन द हाउस. यदि हाउस में पार्लियामेंट के जिस भी हाउस में बात कर रहे हैं, या विधान हम स्टेट लेवल पर लेजिस्लेचर में बात कर रहे हैं, हाउस में जनरल डिस्कशन के द्वारा भी हम हमारी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकती है. लेजिस्लेचर कैन इंश्योर द कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव
during the general discussion also in the house. Mainly, deliberation and discussion involve the four procedures: question hour, zero hour, half an hour, and adjournment motion. The question hour, this is very important hour. It is held every day during the session, beginning of the session of parliament. It is an important instrument to control executive. During this hour, ministers have to respond to researching question raised by the members. ये पार्लियामेंट के बिगिन में सेशन स्टार्ट होने के बाद स्टार्ट होता है क्वेश्चन आवर. इसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स कंसर्न मिनिस्टर्स से क्वेश्चंस पूछते हैं और मिनिस्टर्स को उनके क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है. इसके थ्रू लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को. नेक्स्ट, जीरो आवर. इन जीरो आवर मेंबर्स आर फ्री. इस आर के अंदर, इस ड्यूरिंग दिस टाइम हमारे लेजिस्लेचर के मेंबर्स कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. द मेंबर दैट टॉपिक, द मैटर, द सब्जेक्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, दो द मिनिस्टर्स आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई. लेकिन इस जीरो आवर के टाइम मिनिस्टर्स को जवाब देना जरूरी नहीं होता है. वो जवाब दे भी सकते हैं या नहीं भी दें, बाद में भी दे सकते हैं. हाफ एन आवर डिस्कशन ऑन मैटर ऑफ पब्लिक. एक हाफ एन आवर लगभग पब्लिक इंपोर्टेंट या पब्लिक रिलेटेड इश्यूज के ऊपर बेस्ड होता है. एडजर्नमेंट मोशन ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स. The question hour is the most effective method of keeping vigil. Vigil means एक कंट्रोल रखना, नजर रखना on the executive and the administrative agencies of the government. क्वेश्चन आवर एक सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है. जितनी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज है या एग्जीक्यूटिव, जब पॉलिटिकल या परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, उनके ऊपर एक कंट्रोल रखने के लिए, टू इंश्योर ए चेक, क्वेश्चन आवर इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी most effective method. MP have shown great interest in the, यही इसी की वजह है कि मोस्टली जो MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्वेश्चन आवर में दिखाते हैं. और पार्लियामेंट के सेशन में सबसे ज्यादा अटेंडेंस भी क्वेश्चन आवर के टाइम ही रिकॉर्ड की जाती है. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एम एट एलिस्टेटिंग इंफॉर्मेशन. ज्यादातर क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन जानने के बारे में होते हैं, इंफॉर्मेशन लेने के रिगार्डिंग होते हैं गवर्नमेंट से ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. मेनली पब्लिक, जनता की भलाई से जुड़े हुए मुद्दों पर गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन जानने के लिए ज्यादातर क्वेश्चंस एम्ड होते हैं. मेनली ऐसे क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? महंगाई, प्राइस राइज, कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड सिक्योरिटी सरकार में है, इस देश के अंदर है या नहीं है, सरकार फूड सिक्योरिटी मेंटेन कर रही है नहीं कर रही है. एट्रोसिटीज ऑन वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के जो कमजोर वर्ग है उनके ऊपर जो अत्याचारों के खिलाफ जो जितनी भी जातियां हो रही हैं, उनके रिगार्डिंग मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर्स. दिस आर गिव्स द मेंबर एन अपॉर्चुनिटी. द क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट के मेंबर्स को, लेजिस्लेटिव मेंबर्स को एक अवसर प्रदान करता है टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं. रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम दे, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी वो मेंबर बिलोंग करता है, चाहे रूलिंग पार्टी का है, अपोजिशन पार्टी का है, वो अपने एरिया की, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रॉब्लम्स को क्वेश्चन के दौरान उठा सकता है, सरकार से कोई जवाब मांग सकता है. दिस आर इज कॉमनली विटनेस टू सी द मेंबर्स. ये आर एक ऐसा आर है जो मेनली इसमें इस बात की कॉमनली ये चीज देखा जाता है कि ज्यादातर मेंबर्स अपने क्वेश्चंस रेज करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं अपने मुद्दों के रिगार्डिंग, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज की प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग. कई बार विरोध दिखाने के लिए हाउस के वेल तक पहुंच जाते हैं, वॉकआउट, पार्लियामेंट सेशन से वॉकआउट कर जाते हैं अपनी बात को साबित करने के लिए. दीज एक्शंस मेक एग्जीक्यूटिव, मेनली ये सारे एक्शंस इसलिए किए जाते हैं ताकि एग्जीक्यूटिव्स को अकाउंटेबल रखा जा सके, टू इंश्योर द एग्जीक्यूटिव्स अकाउंटेबल. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स.